what we are going to do. So let's start with the past papers question for human nutrition. Now, as we know that human nutrition has total three subtopics. One is the balanced diet, and from the balanced diet, there was a question that we have already solved in the class when we did the balanced diet topic. And then we have a subtopic human digestive system that includes all the functions of all the organs, enzymes, ingestion, digestion, physical digestion, chemical digestion, everything. And then we have absorption and assimilation. In absorption and assimilation, it's all about the villi structure, how ileum is absorbing the things, where the nutrients are being absorbed and by which process the nutrients are being absorbed, and then the assimilation, right? And finally the digestion. uh, so let's start. Now this is a question which is from the J24 P21, right? Brown bread made from the flour of whole wheat grains contains both starch and fiber. Now, what I feel this is the beauty of the CIE questions, that they always provide you the information before they ask you the question, and the information they always provide you, it has the hints which will be used, which you should get and you should use in your answers. See, now they, what is the hint? The hint is that they are telling you the composition of this whole wheat grains. A man eats a piece of brown bread. In his digestive system, the starch in the bread is chemically digested to maltose and then to glucose. Describe where and how this digestion take place as the bread travels through his digestive system, right? uh, Here, what, how, where, and how. Now here we have always remember, whenever we solve the P2 question, we follow the buck technique. Now what is the buck technique? Buck technique is basically, first we bracket the command word, right? And what are the command words? The command words are describe, explain, state, outline, assess, discuss, illustrate, outline. These are the command words, right? Basically, these command words tell you that what, in which way you have to answer the question, right? If they say, if they ask you describe, it means that you only have to describe the process. Or for example, if they ask you to describe the graph, it means that whatever you can observe on the graph, this is what you have to describe. But if they say explain, it means that you have to give the reasons behind whatever the information that has been given, right? So first is the bracket the command word. This will let you know that how do you have to answer the question. Now second is underline the keywords. Now you have to underline the keywords or the main information which is basically given in your question. Okay, important information. Underline the keywords and important information so that you may not miss that information to be included in your answer, right? Next is G. G means grade. Grade means marks. How many mark this question is? This question is a 4 mark question, right? So these are the three things that you have to do. So first, bracket the command word describe. Now you only have to describe what happens after that, what happens, right? That's it. Why it happens, you do not have to describe. Where and how, right? Describe now where and how. Now these are the important information that you, where the location, wherever the starch is being digested, and how it is digested, right? For from which enzyme it is digested, take place as the bread travels through his digestive system. Now you have to describe the whole process. You have to describe in a paragraph wise, or you may also write points as well, bullet points, but always write the full statements, not only the full statements, but also you have to, do not have to write the short forms of any word,
right? Sometimes students write water potential as W dot P. Never ever write the short forms of the verb. Always write the full spellings, and always remember the spellings of the biological keywords. Like, for example, if they are the name of the organs or any process, you should write the correct spelling of it. Because if the spelling is incorrect, and if by reading that spelling we cannot pronounce the right word, so you won't get the marks. Okay. So what we now you people have to suggest me that what we have to uh, reply in this question. What is going to be the answer for this question? Yes. Can any one of you let me know that what are going to be the marking points for this question? Where? Now you have to tell where the starch digestion takes place, right? I'm just only writing down here the marking points. First, starch digestion. Now, starch chemical digestion. Chemical digestion by salivary amylase in mouth. Now, see, mouth is the place where starch is being digested into maltose. Into maltose, right? Because starch doesn't digest into glucose in one reaction. It is a double. It is a basically two reactions in which starch is completely digested into glucose. First, it is digested into maltose and then into glucose. So first, starch chemical digestion by salivary amylase in mouth into maltose. Second, yes, Yusra has replied in mouth the salivary gland secretes saliva containing the enzyme. Very good, shabash, very good. But Yusra, see, this your answer is very nicely written, but see the space, right? You can also write this. This is a very right answer, but how? Because still there are two further more digestions that are left. The rest of the starch is digested into maltose in duodenum by pancreatic amylase, right? ठीक है. Now here, now the third one. Now the maltose, the further maltose. Now you also have to write down maltose as well. Where is the digestion of maltose take place? Maltose, maltose is digested by maltase enzyme at the brushing edges of epithelial cell lining of small intestine. ठीक है. अच्छा, ये जो ब्रशिंग एजेस है ना, ब्रशिंग एजेस का मतलब है कि जहाँ पे हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है ना, जिनके पास विलाय था बेसिकली, ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं. सो टीचर, कैन वी से स्टमक एसिड? नॉट एट ऑल बेटे. स्टमक एसिड से तो स्टार्च डाइजेस्ट ही नहीं होता ना. स्टार्च तो हमारा अमाइलेज से डाइजेस्ट होता है, और अमाइलेज हमारे माउथ में स्लाइवा से बनता है, राइट? स्लाइवा के अंदर होता है. एक तो वहाँ डाइजेशन हो रही है, एक हमारी ड्यूडेनम में हो रही है. इनफैक्ट अमाइलेज तो हमारा स्टमक में जाके डीनेचर हो जाता है, बिकॉज स्टमक हैज़ एन एसिडिक इन्वायरमेंट वेयर अमाइलेज डज नॉट रिमेन इंटैक्ट. वहाँ पे उसका शेप ही चेंज हो जाता है उसकी एक्टिव साइट का. ठीक है. तो ये तीन जगह पे हो रहा है. अब मैं आपको साथ साथ में, अब हमने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और यूस्ट्रा फर्दर आपने इसको अच्छा लिखा. इसके बाद फर्दर आप इसको ड्यूडेनम एंड देन फिर माल्टोज का करेंगे. अब मैं आपको इसी का ही इसकी मैं आपको मार्किंग स्कीम शो करूँगी कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या कहती है. ये है J24P21 and 5090. Azan break. All right. Now see, I have also pasted the marking scheme. It's a 4 mark question. It means that 4 marking points are needed. Marking points are basically 4 points. कभी भी 4 mark doesn't mean that you have to write down at least 4 lines.
ठीक है, यू हैव टू राइट डाउन 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो आप 2 लाइन्स में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको अंडरलाइन किया था वेयर एंड हाउ। ठीक है, अब आप यू कैन सी दैट इनका फर्स्ट मार्किंग पॉइंट जो आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम में है, अमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च। ठीक है, अमाइलेज प्रोड्यूसेस माल्टोस, स्लैश लगाया हुआ, यानी इन दोनों में से आप कोई भी एक बात लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा केमिकल डाइजेशन बाय स्लाइवरी अमाइलेज, स्टार्च केमिकल डाइजेशन बाय स्लाइवरी अमाइलेज, करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा इनटू माल्टोस, वो माल्टोस तो खैर उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने बताया, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ के मार्क्स नहीं है। अमाइलेज का नाम मेंशन करना, हाउ, हाउ के अंदर एक पॉइंट आता है कैसे, तो अमाइलेज। सेकंड, अमाइलेज कहाँ कर रहा है, एक अमाइलेज कर रहा है माउथ में कर रहा है। ठीक है, और या आपने स्मॉल इंटेस्टाइन बताया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे भी बताया कि स्टार्च और डाइजेस्ट कहाँ पे हो रहा है, ड्यूटीनम में, यहाँ पर हो रहा है। सेकंड, आपका एक पॉइंट आपको मिल गया स्लाइवरी अमाइलेज से, एक पॉइंट आपको मिल गया कि स्लाइव बाकी का स्टार्च जो है वो ड्यूटेनम में पैनक्रियाटिक अमाइलेज से हो रहा है। ठीक है, माल्टेज एक्ट ऑन माल्टोस, फिर हमने कहा माल्टोस इज डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम, थर्ड पॉइंट आपको इसके अंदर मिल गया। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपकी सेल लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट। माल्टेज कहाँ पर है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो यू कैन सी दैट कि हमने चारों मार्किंग पॉइंट्स कवर किए हैं, कि दोनों अमाइलेज का जिक्र किया, दोनों कहाँ पे कर रहे हैं, और किस किस जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा माल्टोस किससे डाइजेस्ट हो रहा है और कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, तो 4 मार्किंग पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट वी मे मूव फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द फाइबर एट इट पासेस थ्रू हिज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फाइबर के साथ क्या होता है। ठीक है, फाइबर के साथ क्या होता है कि फाइबर, अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या करना है, बग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस। ठीक है, व्हाट हैपेंस और किसका, फाइबर, फाइबर के साथ क्या हो रहा है, पैसेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से जब पास हो रहा है। यस इब्राहिम, रिपीट व्हाट। uh, when it is passing through the digestive system, it means that when the fiber is passed through digestive system, उसके उसके अंदर कोई डाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमें बात समझ में आती है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज फाइबर remains undigested, fiber is not digested, fiber is not digested in digestive tract of मैन, ऑफ दैट मैन, ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एनस एज एन अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, हमने इसके अंदर ये बता दिया कि फाइबर डाइजेस्टिव ट्रैक में ह्यूमन के बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, राइट, और वो एनस से एज एन अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट से रिमूव हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट डज द मार्किंग स्कीम सेज। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम भी वही है। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपकी कहती है, मार्किंग स्कीम सेज नॉट डाइजेस्टेड नॉट ब्रोकन डाउन। क्यों, अब देखिए मैंने ये नहीं लिखा कि, मैंने जब आपको बताया था फाइबर की डाइजेशन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी सेलुलेज एंजाइम बनाती ही नहीं है जो फाइबर को डाइजेस्ट कर सके। जो सेल्यूलेज एंजाइम का ना बनाना है कि वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन। इफ दे हैड आस्क्ड कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, तो हम कहते हैं कि फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम दैट मे डाइजेस्ट द फाइबर। फॉर एग्जाम्पल सेलुलेज, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन मांगी, तो आई ओनली मैंशन फाइबर इज नॉट डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन। ठीक है, एंड सेकेंड इट इज़ रिमूव, इसके बाद क्या हुआ, जब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो आपके गट से रिमूव हो रहा है, इजेशन हो रही है, एज एन अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट पैसेस आउट ऑफ द एनस इन द फीसेस। सिंपल सी बात है, वही बात जो आपकी मार्किंग स्कीम में की गई है, सेम आई हैव रिटन। यस, विच एंजाइम,
देखिए बेटे, फाइबर इज बेसिकली आपका जो होता है दैट इज द हस्क। आपका फाइबर जो होता है ये आपके जो प्लांट बेस्ड फूड होता है ना, प्लांट बेस्ड फूड में एज यू नो दैट प्लांट बेस्ड फूड इज मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स आर हैव सेल वॉल्स एंड सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, इसके अलावा सेल्यूलोज के अलावा भी हमारी सेल वॉल्स जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके दरमियान में, दो सेल्स के दरमियान में एक और कार्बोहाइड्रेट होता है, पैक्टिन भी होता है। ठीक है, तो देर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर नीडेड। अब वी डू नॉट हैव पैक्टिनेज एंजाइम टू डाइजेस्ट दैट पैक्टिन विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो सेल्स को जो है वो होल्ड करके रखता है प्लांट्स के अंदर। आमतौर पे फ्रूट्स के अंदर होता है पैक्टिन, या आप पैक्टिनेज एंजाइम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहते हैं, द रीज़न बिहाइंड इज दैट वी आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस दोस एंजाइम which may digest these fibers। ये सेल वॉल्स, ये सेल्यूलोज सेल वॉल्स को डाइजेस्ट कर सकें, वो नहीं करते। दैट्स व्हाई इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक। ना माउथ में डाइजेस्ट हुआ, ना स्टमक में हुआ, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है वो आपकी बॉडी से इजेशन हो जाती है उसकी। ठीक है, आई एम सॉरी। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब जो आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब, आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। 3 लाइनें दी हुई हैं। अब आप सोचिए ये जो मैंने लिखा है ये आप हार्डली 1.5 लाइन में लिख सकते हैं, 1.5 लाइन में आपका आंसर हो गया। यू विल गेट द 2 मार्क्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए। इतनी कहानियां नहीं लिखनी होती है इसके अंदर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिगर 5.1 शोज टू स्ट्रक्चर फाउंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है, अ टूथ, अ स्लाइवरी ग्लैंड। उन्होंने आपको बता भी दिया कि ये टूथ है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है, आपको इवन आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ शोन इन द डायग्राम। अब इस टूथ को देख के क्या पता चलता है ये कौन सा टूथ है? इज इट incisor, canine, premolar और molar? Yes. If it was worth of 4 mark, yes, molar is right, Ibrahim। अगर ये 4 मार्क का होता है, कभी भी डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, इसके साथ एक्सप्लेन भी वर्ड होता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। फिर 2 मार्क्स डिस्क्रिप्शन के होते हैं और 2 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के होते हैं। हमेशा जो मार्क्स होते हैं ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, जब भी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन का वर्ड, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन है तो वो कभी भी 2 मार्क का नहीं आता, या तो वो 3 मार्क का आता है या 4 मार्क का आता है। ठीक है, जिसके अंदर टू, अगर 3 मार्क का है तो उसमें 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के होते हैं, रीज़न बताने के होते हैं, 1 मार्क डिस्क्रिप्शन का होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने जब भी आप क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं तो क्वेश्चन को 5 सेकंड में पढ़ के फ़ौरन आंसर नहीं करना होता। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, कितने मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कमांड वर्ड, और क्या चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दे आस्क डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ, दो चीज़ें पूछी गई, कहाँ और कैसे। दैट्स वाई इट वॉज अ 4 मार्क। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, ये है मोलर। यस, इट इज़ अ मोलर, इट्स अ मोलर टूथ, राइट, इट्स अ मोलर टूथ। और इवन इसकी अगर हम मार्किंग स्कीम देखेंगे ना तो इसमें प्री मोलर भी, प्री मोलर को भी ये लोग ओके कर रहे होंगे। नेम द आउटर लेयर ऑफ द टूथ। अब टूथ की जो मोस्ट आउटर लेयर होती है, इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टडी किया था टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा था द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ इज इनेमल। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया। तो आपको टूथ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, उसकी लेबलिंग भी पता होना चाहिए, उसके फीचर्स भी पता होने चाहिए कि एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट आवर बॉडी मेक्स। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट इट्स अ 4 मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बग टेक्निक, ब्रैकेट, एक्सप्लेन how the tooth and salivary gland contribute to digestion in different ways। ठीक है, कैसे, किस तरीके से, अब आपने एक्सप्लेन करना है कैसे। डिस्क्रिप्शन ये है कि टूथ एंड salivary gland do the digestion, but how they are doing the digestion and how they are different from each other,
ये आपके 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर आप लिखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ से रखूँ, ठीक है? टूथ टूथ क्या करते हैं? टूथ कंट्रीब्यूट्स इन ब्रेक डाउन, नहीं तो वो आप उसको देखिए ब्रेक, यू मस्ट व्हाट आई सजेस्ट कि हमने जो कीवर्ड्स पढ़े हैं ना, बायोलॉजिकल की टर्म्स पढ़ी हैं, वी शुड यूज दोज की टर्म्स इन आवर आंसर. टूथ कंट्रीब्यूट्स इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है? फिजिकल डाइजेशन क्या, अब जब आपने फिजिकल डाइजेशन कह दिया ना, तो आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? जब आपने फिजिकल डाइजेशन कह दिया तो इट मीन्स दैट फिजिकल डाइजेशन का मतलब है करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बस एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जिसकी डेफिनेशन मुझे पता है, एग्जामिनर को पता है कि व्हाट डज फिजिकल डाइजेशन मीन. टूथ कंट्रीब्यूट्स इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड while salivary gland contributes towards chemical digestion by secreting salivary amylase in saliva, ठीक है? आपने बोल दिया कि कैसे, किस तरीके से इनकी डाइजेशन डिफरेंट है इनकी. सो व्हाट अबाउट डेवलपमेंट एज पर 4 मार्क. 4 मार्क में आपने देखिए 4 मार्क के अंदर आपने एक तो ये चीज़ आ रही होती है ना, विच इज, देखिए अगर आप इसको देखें, एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, टूथ कंट्रीब्यूट्स इन फिजिकल डाइजेशन, इन्होंने ये लिख दिया डाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी डाइजेशन किस तरीके से डिफरेंट है. तो टूथ contributes in physical digestion of food while salivary gland contributes to a chemical digestion by secreting salivary amylase in saliva. Salivary amylase breaks down और डाइजेस्ट, आप डाइजेस्ट भी वर्ड लिख सकते हैं, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोस, ठीक है? ये आपने बता दिया. अब आप ये देखिए, अब सिंपल आपने बता दिया फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं, केमिकल चेंज नहीं लेकर आ रहे, च्युइंग कर रहे हैं. फिजिकल डाइजेशन बाय च्युइंग एंड ग्राइंडिंग, आप ये भी लिख सकते हैं, बाय च्युइंग एंड ग्राइंडिंग, च्युइंग एंड ग्राइंडिंग करके फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं. ओके, एक मिनट मैं इसको और करती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है? अब मैंने इन दोनों की डाइजेशन बता दी कि टूथ जो है फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं च्युइंग एंड ग्राइंडिंग करके. फिजिकल डाइजेशन का वर्ड बोल दिया, मतलब ये कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है? स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं, सीक्रेटिंग स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, इन स्लाइवा. अब इसके अंदर जो मार्क्स होंगे वो फिजिकल डाइजेशन के होंगे, केमिकल डाइजेशन के होंगे, स्लाइवरी अमाइलेज के होंगे, डाइजेस्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज के होंगे. अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ, इसका मैं आपको दिखाती हूँ पास पेपर के अंदर N23B21. मार्किंग स्कीम इसकी, मार्किंग स्कीम इसकी क्या कहती है, ये क्वेश्चन कौन सा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ठीक है, अभी मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करती हूँ. लेट्स सी कि मैंने कितने मार्किंग पॉइंट्स इसमें लिखे हैं. अम, ठीक है, ये मेरा आंसर है और मैं अब मार्किंग पॉइंट पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, राइट? ये मार्किंग पॉइंट्स हैं, इनको और दूसरा कलर कर लिया जाए. अच्छा, मार्किंग पॉइंट्स क्या है? एनी टू फ्रॉम, टू फ्रॉम यानी टूथ के लिए दो बातें इनमें से कोई. टूथ क्या कर रहे हैं? फिजिकल डाइजेशन. सी, मैंने फिजिकल डाइजेशन का वर्ड यूज किया, ठीक है? यानी आपको टूथ के लिए बताना है और स्लाइवरी ग्लैंड के लिए बताना है. टूथ के लिए एक फिजिकल डाइजेशन का वर्ड, ग्राइंड्स ब्रेक अप फूड इनटू स्मॉलर पीसेस इन लार्जर सरफेस एरिया, रिच सरफेसेस, हार्ड वेयरिंग सरफेसेस.
ठीक है, मैंने यूज वर्ड किया च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, आई हैव यूज्ड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, मैंने सेकंड वर्ड भी यूज कर लिया, राइट, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये दोनों मार्किंग पॉइंट्स यूज किए हैं, फिजिकल डाइजेशन का वर्ड भी यूज किया और ग्राइंडिंग भी यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे आप कौन कौन सी चीजें इसमें से यूज कर, स्लैश का मतलब है ग्राइंड्स लिख रहे हैं, ब्रेक अप फूड इनटू स्मॉलर पीसेस लिख रहे हैं, या उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, रिच सरफेसेस होती हैं इनकी, हार्ड वेयरिंग सरफेस होती है, अगर आप ये लिख रहे हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड के लिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा इसको ऊपर करके दिखाऊं। स्लाइवरी ग्लैंड के लिए क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड के लिए दे से दिस कि स्लाइवरी ग्लैंड केमिकल डाइजेशन करते हैं, प्रोड्यूस अमाइलेज स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज। मैंने इसके तीनों मार्किंग पॉइंट्स कवर किए, केमिकल डाइजेशन की, ठीक है, और स्लाइवरी अमाइलेज बनाया, और स्लाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में कर रहा है, लेकिन मैंने तीन मार्किंग पॉइंट किए, लेकिन मुझे 2 मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर, +2 मिलेंगे, और यहाँ पे मैंने फिजिकल डाइजेशन का वर्ड यूज़ किया और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का वर्ड यूज़ किया, तो मुझे 2 मिल जाएंगे, तो दैट्स हाउ आई एम अबाउट टू गेट 4 मार्क्स। ये वाली बात समझ में आ रही है कि हाउ आई एम डूइंग, हाउ आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन। पहले तो आंसर को समझिए कि अब यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क स्लाइवरी ग्लैंड के लिए और 2 मार्क टूथ के लिए हैं। अब टूथ किस तरीके से डाइजेशन कर रहे हैं, आपने सिंपल फिजिकल डाइजेशन लिख दिया ना, केमिकल डाइजेशन लिख दिया ना, दीज आर द बायोलॉजिकल कीवर्ड्स, अगर आप इनको करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं तो आपको उनको पूरा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल, आपको पूरा बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि फिजिकल डाइजेशन होती क्या है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि वाटर इज मूविंग बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि अगर मैंने सही जगह पे ऑस्मोसिस लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल इन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जिन कुछ जगहों पे ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी भी होती है जहाँ पे वाटर पोटेंशियल वगैरह करना होता है, अदरवाइज ऑस्मोसिस लिख दिया वहीं पे आपको पॉइंट मिल जाता है। सो दिस इज हाउ यू आर writing the answer, a 4 marker question. Ma'am, only starch will be broken down in mouth. No, starch is not broken down only in mouth. Starch is also broken down into maltose in duodenum, in small intestine by pancreatic amylase. क्योंकि starch की complete digestion हमारे mouth में हो नहीं पाती है। जब हम food swallow करते हैं तो esophagus से जब तक food stomach में पहुंचता है, तो during passing through esophagus, starch is digesting the starch, sorry, salivary amylase is digesting the starch, but that starch is not completely digested, वो स्टार्च completely डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है क्योंकि काफ़ी सारा स्टार्च है, और हम तो एक तरीके से च्यू भी अच्छे से नहीं करते जो कि सरफेस एरिया बढ़े। तो होता क्या है कि जब ये स्लाइवरी अमाइलेज और हमारा जो स्टार्च होता है वो जब पहुंचते हैं स्टमक में, तो स्टमक की pH 2 होती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्लाइवरी अमाइलेज होता है वो डी नेचर हो जाता है, तो स्टार्च की फर्दर डाइजेशन इनटू माल्टोज दैट होल्ड्स इन द स्टमक, सो दैट्स व्हाई फिर वो अब रह गया, तो अल्लाह ताला ने, दैट्स व्हाई नेचर हैज़ मेड के एक और अमाइलेज बन रहा है इन द विच बाय द पेनक्रियास, जो कि हमारे ड्यूडेनम में उसके ऊपर एक्ट करता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। द स्टमक वॉल प्रोड्यूसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। अब आपको इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, नेम 2 ऑफ दीज, अब हम क्या करें, नेम 2 ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। सी बक टेक्निक है, नेम, नेम इज द कमांड वर्ड एंड एक्सप्लेन इज द कमांड वर्ड। पहले तो आपने 2 सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जो स्टमक वॉल में बन रहे हैं, स्टमक वॉल बना रही है, फिर एक्सप्लेन करना है कि ये डाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व है, ठीक है, ये कैसे इन्वॉल्व है। तो आपके नाम क्या हैं, what are the names of the 2 substances that are produced by uh, no only starch is needed to be broken down or other things as well, actually other things also needed to be broken down। जब हम खाना खा रहे हैं तो सब चीज़ों को डाइजेस्ट होना है, लेकिन हमारे माउथ में सिर्फ अमाइलेज बनता है स्लाइवरी ग्लैंड से, तो स्टार्च की डाइजेशन ही बिगिंस इन द माउथ, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी डाइजेशन जो है वो बाद में स्टार्ट होती है। जैसे कि माउथ में डाइजेशन, आई थिंक यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरी डाइजेशन बताई थी, you should go and watch that lecture
जो डे बिफोर येस्टरडे वाला है, फ्राइडे वाला लेक्चर जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसको वॉच करें तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर मैंने पूरा सीक्वेंस बताया था कि स्टार्च माउथ से इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, किसी और चीज़ की स्टार्ट नहीं होती। स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है, एंड देन फिर प्रोटीन स्टार्च और लिपिड्स की डाइजेशन मजीद आपकी हो रही होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू नेम टू सब्सटेंसेस। What are the two substances that are secreted by the stomach wall? Number one is hydrochloric acid. अच्छा, एक चीज that I really want to mention: never ever write HCl. They do not want you to write the chemical formula. They ask for the name. Name का मतलब है HCl नहीं लिखना है, hydrochloric acid लिखना है. Second is the pepsin. Pepsin, गैस्ट्रिक प्रोटीएज, ठीक है। पैप्सिन विच इज अ गैस्ट्रिक प्रोटीएज, गैस्ट्रिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि स्टमक आपका प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक प्रोटीएज है। अब आपने इनका नाम लिख दिया, 2 नंबर आपको इसके मिल गए। 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क का क्वेश्चन का मतलब है 2 नेम के हैं और 2 एक्सप्लेनेशन के हैं कि हाउ दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ठीक है। तो 2 मार्क्स तो आपको इसके नेम के मिल गए। सेकेंड अब आता है कि हाउ दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। HCl क्या, HCl का बेसिकली HCl की इन्वॉल्वमेंट क्या है डाइजेशन के लिए। अक्सर बच्चे लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, बट किलिंग बैक्टीरिया हैज नथिंग टू डू विद द डाइजेशन. This is what you need to understand. We have discussed that there are two functions of hydrochloric acid in stomach. Number one is killing the bacteria. This is for the defensive purpose. Second is for creating the acidic environment in the stomach, so that pepsin, which is a protease in nature, it has an optimum pH of 2, so that it may work efficiently in that acidic environment. ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली जब हमारी गैस्ट्रिक मसल्स जो होते हैं, सॉरी नॉट मसल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो पेप्सिन बनाते हैं, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है जब तक न्यूट्रल पीएच है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो स्टमक का इन्वायरमेंट +2 सॉरी एसिडिक कर देता है, यानी pH 2 कर देता है, तो वो पेप्सिनोजिन एक्टिव होकर के पेप्सिन बन जाता है, एंड नाउ इट स्टार्ट डाइजेस्टिंग द प्रोटीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी राइट, हाइड्रोक्लोरिक acid creates acidic environment or pH for pepsin enzyme to work efficiently at its optimum pH for digesting proteins, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब इसके अंदर मैंने बता दिया कि एसिडिक इन्वायरमेंट बना रहा है, एंड सेकेंडली क्या कर रहा है ताकि हमारा जो ऑप्टिमम पीएच हो जाए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन डाइजेशन। यस, केमिकल बैरियर अगेंस्ट डिजीज। लेकिन वो क्वेश्चन देखिए ना, दे आर आस्किंग इस चीज को करना है कि इन्वॉल्व इन डाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल इन डाइजेशन, नॉट इन इम्यूनिटी और इन डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम नहीं बताना, किलिंग बैक्टीरिया वोंट गिव यू 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे आपने कंट्रीब्यूशन बताना है फॉर डाइजेशन, और वो उसका कंट्रीब्यूशन ये कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि पेप्सिन काम कर सके। अगर एसिडिक पीएच नहीं होगी तो पेप्सिन वोंट वर्क एफिशिएंटली, काम ही नहीं करेगा भाई। उसकी तो ऑप्टिमम पीएच 2 है, 3 पे तो वो आपका 3 और 3.5 पीएच पे तो वो डीनेचर हो जाता है। तो अगर आपकी पीएच बड़ी भी होगी तो पेप्सिन वोंट वर्क। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन को भी मैंने यहाँ पे उसका बेसिकली लिख दिया है, एक ही लाइन के अंदर मैंने दोनों चीज़ें वैसे लिख दी हैं, फॉर पेप्सिन एंजाइम टू वर्क एफिशिएंटली एंड, ठीक है। नाउ पेप्सिन is a gastric protease that digests proteins into polypeptide chains and amino acids, ठीक है। ये इसमें इसको चेंज करती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में और अमाइनो एसिड्स में। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसकी
मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या कहती है? मार्किंग स्कीम कहती है, ये मार्किंग स्कीम है, लेट मी कॉपी दिस मार्किंग स्कीम। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपकी कहती है, वेयर शुड आई पेस्ट इट नाउ, वेट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन। ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम करती हूँ विद अनदर कलर, आपको पता लग जाएगा कि what does the marking scheme says. The marking scheme says चार चार नंबर के लिए क्या करना है, 4 मार्क के लिए चार। ठीक है, और वो चार बातें क्या हैं बेसिकली? एक तो नंबर मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सेकंड इसका फंक्शन है, एंड व्हाट इज द फंक्शन? ऑप्टिमम ऑफ बेस्ट एसिडिटी, करेक्ट पीएच फॉर एंजाइम एक्शन, जो कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। सेकेंड इज पैप्सिन या प्रोटीएज हमने लिखा, जो कि हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने, आप देखें कि दोनों कवर हमारे, दोनों चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। ठीक है, सो वी कैन गेट ऑल 4 पॉइंट्स, दिस वे वी कैन गेट ऑल द 4 मार्क्स। इसमें अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू मे आस्क क्वेश्चन। कैन यू टेल अबाउट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन? अच्छा देखो, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यू पीपल हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर ना, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। पेप्सिन इज द गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक प्रोटीज। ठीक है, और ट्रिप्सिन इज द पैनक्रियाटिक प्रोटीज। दोनों में फर्क है, एक एंजाइम बना रहा है स्टमक, ठीक है, वो है पेप्सिन। दोनों प्रोटीज हैं, दोनों प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स और अमीनो एसिड्स में चेंज कर रहे हैं। फर्क क्या है? द डिफरेंसेस, pepsin is produced by stomach and trypsin is produced by pancreas. Pepsin की the the place where it works, जहाँ पे वो काम कर रहा है, जहाँ पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, वो स्टमक ही है, वहीं पे बन रहा है, वहीं पे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। बट जो ट्रिप्सिन है वो पैनक्रियास बनाता है, लेकिन वो पैनक्रियास से ट्रिप्सिन बन के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, एंड देयर इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड अमीनो एसिड। अच्छा, एक और फर्क क्या है? फर्क ये है कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच है 2, दैट इज एसिडिक पीएच, और ट्रिप्सिन की एसिडिक पीएच है 8 to 9, विच इज एन अल्कलाइन पीएच। तो जब, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दोनों प्रोटीज है, फंक्शन सेम है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड अमीनो एसिड, लेकिन फर्क क्या है? दोनों को बना कोई और रहा है, और दोनों अलग अलग रीजन्स इन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक में उनका एक्शन हो रहा है। देयर एक्शन लोकेशन इज डिफरेंट। पेप्सिन्स लोकेशन इज स्टमक एंड ट्रिप्सिन लोकेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और दोनों की ऑप्टिमम पीएच भी डिफरेंट है। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड चेन, बेटे अब देखिए, या तो हम क्वेश्चन कर लें या मैं आपकी उन बातों के जवाब दूं विच वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन लेक्चर्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती क्या है कि प्रोटीन्स जो होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोटीन्स जो होती हैं वो इस किस्म की फॉर्म में होती हैं, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होती हैं, जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जो एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं उस फॉर्म में होती हैं। जब प्रोटीएज इनको ब्रेक करना शुरू करता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है? बॉन्ड्स को ब्रेक करता है इधर। ठीक है, बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ पेप्टाइड बॉन्ड, इन पेप्टाइड बॉन्ड को वो ब्रेक करता जाता है। अब ये नहीं होता कि पहले उसने यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक किया फिर यहाँ के किया, नहीं, ऐसा नहीं होता, रैंडम ब्रेक हो रहे होते हैं। अब जैसे एक प्रोटीन है जिसके अंदर 100 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन हुए हुए हैं, तो हो सकता है उसने पहला बॉन्ड ब्रेक किया हो 10th वाले अमाइनो एसिड के बाद, इसके बाद उसने नेक्स्ट बॉन्ड ब्रेक किया हो 30 अमाइनो एसिड्स के बाद, तो जो 10 अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े रह गए, दीज आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर फर्दर मजीद उसके ऊपर प्रोटीएज काम करता है, तो फिर वो फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो फिर एक एक अमाइनो एसिड अलग निकलता है, एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइजेशन टेक्स टाइम। जो प्रोटीन्स होती हैं, आप देखिए, उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्पेशली स्टार्च वगैरह बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, बट प्रोटीन टेक्स टाइम। इसीलिए इट इज़ सजेस्टेड कि आप जब भी खाना खाएं तो अपने खाने के अंदर प्रोटीन ज़रूर रखें, क्योंकि ताकि आपको शुगर स्पाइक्स ना हो, आपकी ग्लूकोज लेवल एकदम से ब्लड का ना बढ़े, बल्कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में टाइम लगता है, तो स्लोली ग्रेजुअली आपकी ग्लूकोज आपके ब्लड में एंटर होती है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है।
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स नाउ। लेट मी, हमारे पास अब बहुत कम टाइम रह गया, वी हैव ओनली 10 minutes लेफ्ट इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हार्मोन इज गैस्ट्रिन स्टिमुलेट सेल्स इन स्टमक वॉल। एक हार्मोन है, अच्छा हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। इनका काम जो होता है वो रेगुलेशन होती है, किसी भी कोई भी काम जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसकी रेगुलेशन होती है बेसिकली। हम हॉर्मोन्स को आगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे। इन द स्टमक वॉल टू रिलीज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ये हार्मोन बेसिकली क्या करवाता है कि स्टमक वॉल से कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करवाता है जो कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। सम ऑफ द गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस इन ड्यूडेनम। ठीक है, शो हाउ दिस गैस्ट्रिन रीचेस द स्टमक। वो कह रहे हैं कि गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक तक पहुंचता कैसे है। ठीक है, अब बेसिकली बनाता कौन है, ड्यूडेनम बनाता है। ठीक है, और काम इसका कहाँ पर है, स्टमक तक होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ड्यूडेनम से उल्टा थोड़ी जाएगा, कोई भी चीज़ है वो जाएगा कैसे। और ये चीज़ आपने याद रखनी है बेसिकली, या आगे की ही है, जब हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रहे होते हैं और फिर ब्लड की सर्कुलेशन से वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच रहे होते हैं। तो इसका सिंपल आपका जवाब होगा द गैस्ट्रिन रीचेस द स्टमक बाय ब्लड, थ्रू ब्लड। ठीक है, सिर्फ इसका ये जवाब होगा। और ये बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी आपके चैप्टर के लिहाज से है भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलेशन हॉर्मोन्स वगैरह की बात है विच वी हैव नॉट डन येट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। डिस्क्राइब फिजिकल डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। अब इसके अंदर आप देखिए, डिस्क्राइब फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन कैसे होती है ये बताओ, पहले प्रोसेस बताओ। ठीक है, एक्सप्लेन, वजह बताओ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो मतलब ये कि आपने इसको 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो आपने इसके डिस्क्रिप्शन में बताना है और 2 नंबर इसकी इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन is the breakdown of large food molecules into small food molecules, either by the action of teeth or by the churning wall movements of of stomach। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बता रहे हैं। ये आप बता रहे हैं कि फिजिकल डाइजेशन जो है वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को आपने स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कर दिया, और आपने साथ में एग्जांपल भी कर दी बाय द एक्शन ऑफ टीथ और बाय द चर्निंग वॉल मूवमेंट्स ऑफ स्टमक। ठीक है, इसके बाद आप इसकी इज इट नेसेसरी टू डिफाइन द टर्म बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। एक्चुअली जो उसकी डेफिनेशन है वही उसका प्रोसेस है। ठीक है, अब फिजिकल डाइजेशन को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो फिजिकल डाइजेशन को डिस्क्राइब में बेसिकली उसकी डेफिनेशन ही आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो the substances such as starch are important for so they need to be broken down to smaller for good digestion। Exactly, देखो हमने खाया ब्रेड, ब्रेड में है स्टार्च। ब्रेड को च्यू करने की ज़रूरत है, ग्राइंड करने की ज़रूरत है टीथ के थ्रू, ताकि उसकी डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंस के ऊपर आ रही हूँ। इंपॉर्टेंस में आप क्या लिखेंगे, फिजिकल डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी। it's important as it increases the surface area, it increases the surface area for efficient and quick chemical digestion by enzymes। क्यों ज़रूरी है भाई ये, क्यों ज़रूरी है, एक तो मैंने इसका रीज़न बता दिया, ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है। जब सरफेस एरिया बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है, फॉर द एफिशिएंट एंड क्विक केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स, ताकि एंजाइम्स जो है वो एफिशिएंटली उसको केमिकली डाइजेस्ट करें। ठीक है, मैंने टर्म देखी, केमिकली डाइजेस्ट किया, एंजाइम किया। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ इसकी मार्किंग स्कीम क्या कहती है। मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि डिस्क्राइब कैसे हो रही है फिजिकल डाइजेशन एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। और इसके बाद मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम J23P22, J23। ठीक है, अब
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2A। अब मैं आपको मार्किंग स्कीम के कुछ वर्ड्स भी, बल्कि मैं मार्किंग स्कीम यहाँ पे पूरी ही अगर मैं आपको स्क्रीन तो नज़र आ रही है, ठीक है, इसको छोटा करती हूँ, मैं आपको मार्किंग स्कीम समझाती भी हूँ। फर्स्ट दिया है 4 पॉइंट से 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने। 7 में से कोई भी 4 आप लिख रहे हैं, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। मेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, नो केमिकल चेंज, ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज नहीं होता है उसके अंदर, सिर्फ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस है। और अगर आपने देखा हो तो हमने लिखा था कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाते हैं। च्युइंग और ग्राइंडिंग, च्युइंग, और मैंने आई थिंक ये वर्ड पहले मैं ये मेरे ख्याल से वहाँ पे लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई शुड पेस्ट इट हियर सो दैट वी मे कंपेयर इट, ठीक है। अभी आप देखिए, मेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जो मैंने बताया कि यहाँ पे इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल, ठीक है, एक ही बात है, यानी फर्स्ट पॉइंट मिल गया। चुइंग और टीथ, टीथ का वर्ड यूज किया या ग्राइंडिंग का वर्ड यूज किया, हमने कहा बाय द एक्शन ऑफ टीथ, टीथ हमने वर्ड यूज किया है, ठीक है। और बाय द चर्निंग वॉल मूवमेंट, अगर आप देखें मूवमेंट इंक्रीजेस केमिकल, अच्छा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे चर्न्स, स्टमक और चर्न की बात की है, तो मैंने यहाँ पे चर्निंग वॉल मूवमेंट्स ऑफ स्टमक की बात की हुई है, ठीक है। मुझे फर्स्ट पॉइंट भी मिल गया, सेकंड पॉइंट भी मिल गया, थर्ड पॉइंट भी मिल गया। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब ये देखिए, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ की है, और वो गड़बड़ ये की है कि आई डिड नॉट राइट, आई ओनली रोड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्लस। जब कभी भी हम प्लस का वर्ड यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होंगे तो पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ टीथ लिखा था, ग्राइंड नहीं लिखा था, तो मुझे ये वाला मार्किंग पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज आई डिड नॉट यूज द वर्ड ग्राइंड, ठीक है। प्लस टीथ के साथ मैंने ग्राइंड नहीं लिखा, या तो मैं खाली च्युइंग लिखती, मैंने एक्शन ऑफ टीथ लिख दिया। अब एक्शन ऑफ टीथ क्या, मुझे यहाँ पे च्युइंग या ग्राइंडिंग लिखना चाहिए था, वही वाली बात है, पर्टिकुलर टर्म आई हैड टू यूज। मुझे ये वाला मार्किंग पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये वाला मार्किंग पॉइंट मिलेगा, स्टमक की चर्निंग वॉल मूवमेंट, इसका पॉइंट मिलेगा। बट मैंने ये नहीं लिखा इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ वॉट, मैंने ये नहीं लिखा, तो मुझे सरफेस एरिया पे जो 1 मार्क मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने फूड नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद है फॉर केमिकल डाइजेशन और एंजाइम एक्शन, ठीक है, केमिकल डाइजेशन मैंने लिखा है, सो मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है +1, ठीक है, और मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है, और मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है। मेरा जो फोर्थ पॉइंट था इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, उस वजह से रह गया कि आई डिड नॉट राइट ऑफ फूड, तो पूरा सेंटेंस लिखना था मुझे कि दैट इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फूड फॉर एफिशिएंट एंड क्विक केमिकल डाइजेशन, इन्होंने भी ये लिखा है। पेरिस्टालसिस का वर्ड अगर आपने यूज़ किया हो, या मिक्सिंग विद एंजाइम्स, के केमिकल डाइजेशन से बेसिकली फिजिकल डाइजेशन से आपके एंजाइम्स के साथ, जैसे स्टमक के अंदर होता है कि जब आप आपकी स्टमक वॉल मूव करती है तो उसके साथ आपके जो एंजाइम गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनके साथ आपका फूड मिक्स हो रहा था, सेम हमारे माउथ में भी होता है, जब हम च्यू कर रहे होते हैं तो जो स्लाइवा के साथ हमारा फूड मिक्स हो रहा होता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव नॉट यूज, तो मुझे तो इसके अंदर 3 मिलेंगे, दिस टाइम आई डिड नॉट गेट 4। तो आई यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, AW मीन्स ऑल्टरनेट वर्ड्स, ठीक है मैम, बट इट्स अबाउट फिजिकल, यू सेड केमिकल। बेटे देखिए, इम्पोर्टेंस की बात है ना, उन्होंने पूछा कि फिजिकल डाइजेशन जो है वो उसको बताएं वो क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिकल डाइजेशन नहीं होगी तो केमिकल डाइजेशन एफिशिएंटली नहीं होगी, दोनों डाइजेशन आर लिंक विद ईच अदर, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें, बाइल जो है वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स को ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कर देता है। अगर वो ना करे तो लिपिड जो होंगे वो सही लाइपेज सही से लिपिड्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो फिजिकल डाइजेशन इज लिंक विद केमिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन नहीं होगी तो आपकी केमिकल डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, पार्शियल डाइजेशन हो सकेगी। सरफेस एरिया सबस्ट्रेट का बड़ा होगा तो ही तो एंजाइम उसके साथ अच्छा एक से एक्सपोज होगा, तभी इफेक्टिव बाइंडिंग होगी हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट की। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड,
ठीक है। हमारी क्लास में लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ताकि इफ़ वी हैव टाइम, वी हैव 3 मोर मिनट्स। अच्छा, एटलीस्ट हम अब ये डिस्कस कर सकते हैं कि सो फार, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट द नेम ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द स्टमक दैट किल्स मैनी इंजेस्टेड बैक्टीरिया। यस इब्राहिम, राइट, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप हमने जो ये पास पेपर सॉल्व किए हैं मार्किंग स्कीम को साथ में रखते हुए, इससे आपको पता चला होगा कि कैसे एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट द आंसर्स। ठीक है। अच्छा, जगह कितनी सारी दी हुई है, मेरा आंसर कितना छोटा सा, बट स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर 3 मार्क। लेकिन अगर मैं सिर्फ फूड लिख देती तो 4 आउट ऑफ 4 मिल जाते। 7 मार्क्स दिए हुए, जिसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से ज़्यादा भी मार्किंग पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है ना, ठीक है, प्लस को इसका मतलब ये कि ये दोनों वर्ड्स, ये सारी चीज़ें होंगी। यानी दो वर्ड्स के साथ अगर प्लस है, मतलब ये टीथ का वर्ड और ग्राइंड का वर्ड यूज़ हुआ होगा तो 1 मार्क मिलेगा। स्टमक के साथ चर्निंग लिखा हुआ होगा तो मार्क मिलेगा। ठीक है। मिक्सिंग के साथ विद एंजाइम्स होगा कि एंजाइम्स के साथ मिक्स हो रहे हैं। अगर आप सिंपली लिख दें कि फिजिकल डाइजेशन हेल्प्स इन मिक्सिंग, नंबर नहीं मिलेगा। मिक्सिंग विद व्हाट, मिक्सिंग विद एंजाइम्स, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दिस वे इट इज़ दीज क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। हमने आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत डिटेल में सॉल्व किए विद मार्किंग स्कीम। I'll try to upload further more basically videos, बहुत छोटी छोटी हर क्वेश्चन की मैं अपलोड कर सकूं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हर क्वेश्चन को डिस्कस करूं मैं और उनके आंसर्स और उनकी मार्किंग स्कीम के साथ, ताकि आप लोग समझ सकें हाउ टू राइट एन आंसर। ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको उस हिसाब से जब आप लिख रहे हैं पॉइंट्स, तो आप देखिए, तो आप उस हिसाब से उसको आंसर कर सकें, राइट। Inshallah Ta'ala, by tomorrow we will be starting our new topic, that is gas exchange in human being. Be there please. जिन लोगों ने पिछली लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ देख लो, जब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अनक्लियर हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर बल्कि टुडे संडे ना, सो वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट क्लास इन ऑन फ्राइडे। सी यू फ्राइडे। अल्लाह हाफ़िज़।